Now students, let's do question number 3rd. It is express each of the following with a positive exponent. So we have to make the powers as positive numbers. The first one is x raised to the power minus 1/2. आपको पता है रेसिप्रोकल होते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा. So I say is equal to 1 upon x raised to the power 1 upon 2. So this will be written as 1 upon x whole raised to the power 1 upon 2. So now it has got a positive exponent. So now we'll be doing the second part. The second part is x raised to the power minus 2 upon 5, that is 1 upon x raised to the power 2 upon 5. So that will be again written as 1 upon x whole raised to the power 2 upon 5. ध्यान रखना कि इसको मैं ठीक से लिख रही हूँ. रेसिप्रोकल किसका होता है? सिर्फ नंबर का. और पॉजिटिव क्या बनती है? पावर. इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. द नेक्स्ट वन इज 7 रेज टू दी 7 अपॉन x रेज टू दी पावर minus 5 upon 6. सो दैट इज 7 इंटू x, और सिर्फ x की ही पावर में है बेटा 5 upon 6. 7 की पावर में तो पहले भी कुछ नहीं था तो वो नहीं रहेगा. सो दिस विल बी द आंसर. द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज x raised to the power minus 3 upon raised to the power 4. So that is x raised to the power minus 12. So that is 1 upon x raised to the power 12, or whole is 1 upon x raised to the power 12. Clear? So I'll start with worksheet 2 also today only, because we have to go a long way. So without wasting much of time, worksheet 2 I am starting. The first question is simplify x raised to the power half into x raised to the power 5/2. Now the bases are same. We have a multiply sign in between. So we know we'll be adding up the powers. This is x raised to the power 1/2 plus 5/2. Beta, you have to show the steps. डायरेक्टली नहीं करेंगे. 1 plus 5. So this is x raised to the power 6 upon 2. Then we cancel it and we get x raised to the power 3, which is the answer. ठीक है. Now coming to the second part of the same question. So the second part of the question is x raised to the power 6 upon 5 upon x raised to the power 1 upon 5. Now I write it as x raised to the power 6 upon 5 divided by, divide तो है, x raised to the power 1 upon 5. So this is x raised to the power 6 upon 5 minus 1 upon 5. So that is equal to x raised to the power 5 LCM, 6 minus 1, that is equal to x raised to the power 5 upon 5. Cancel it and I get x raised to the power 1, which is equal to x. ठीक. And then after your second part, your third part is x raised to the power 7 whole raised to the power 0. So x raised to the power 7 into 0. Any number multiplied by 0 is your 0. So it is x raised to the power 0. And we know any number raised to the power 0, the answer will always come out to be 1. So the answer here is 1. Important है ये question. ठीक है. अब next one is 5x raised to the power 5/6 into 6x raised to the power 1/6. ठीक है. अभी x है, इसको हम x लिख लेते हैं प्रॉपरली कर्सर वाला. अब बेटा इसकी पावर कुछ भी नहीं है. 5 की देयर इज नो पावर एंड 6 की देयर इज नो पावर. सो आई एम सेपरेटिंग 5 and 6. But yes, there is a power for x raised to the x. We have two different powers. So now here we can use the identity. यहाँ कुछ भी नहीं है. So it is 5 6 30 into x raised to the power 5 upon 6 plus 1 upon 6. Right? So that is equal to
30x and 6 is the LCM, that is 5 plus 1, so that is 30x, 6 upon 6, cancel it, 1, so my answer is 30x. Easy? बट ये ध्यान रखना है, अगेन आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, इम्पॉर्टेंट है. अब आ रही हूँ 5th पे. It is x raised to the power minus 7 by 2 into 2x raised to the power minus 1 by 2. So now, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या है 1, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 हम अलग कर रहे हैं, एंड x टर्म्स विल बी सेपरेटिंग आउट. minus 7 by 2 into x raised to the power minus 1 by 2. So I get 2x raised to the power minus 7 by 2 plus minus 1 by 2. So that is 2x raised to the power. Now 2 will be the LCM, minus 7 minus 1. So I get 2x, 2 LCM minus 8. We cancel it. So we get 2x raised to the power minus 4. That is the answer. उसने कहीं नहीं लिखा कि पॉजिटिव इंडिसेस में ही आंसर देना है. सो वी कैन लीव इट अप टू दिस पॉइंट. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट पे. फाइंड द वैल्यू. ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू से भी आ सकता है, इवैल्यूएट से भी आ सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. The question is 512 raised to the power minus 2 upon 9. Right? अब बेटा यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट अभी सिखाने लगी हूँ. जितनी जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा रहेगा. हमने क्या देखना है, जो रेज टू दी पावर में डिनोमिनेटर है उसको देखना है सबसे पहले. तो मेरा डिनोमिनेटर है 9, और फिर उसके बाद देखना है मैंने इस नंबर को. जो बेस है इसके हमने क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स. तो हम 512 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. 2, 256, 2, 128, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2. See, all are going with 2 only. There is no need of any other prime factor. So how many 2s I am getting, children? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So I'll write it as 2 raised to the power 9. And raised to the power is minus 2 upon 9. पता लगा मैंने क्यों कहा था इस 9 को देखो, क्योंकि मुझे कोशिश करनी है कि जो इधर ये जो बेस था इसको मैं ऐसे प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करूं कि या तो ये वाला नंबर सेम आ जाए इसकी पावर में, या फिर इसका कोई फैक्टर आ जाए. सो आई गेट 2 अप रेज टू द पावर 9 इंटू minus 2 upon 9. So this and this 9 will cancel. I get 2 raised to the power minus 2. So that is 1 upon 2 raised to the power 2. So my answer comes out to be 1 by 4. Answer comes out to be 1 by 4. ठीक है, अब हम और करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा. सो आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. The second part is 216 raised to the power 2 by 3 whole raised to the power 1 by 2. अब हमेशा हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें याद भी हैं. यहाँ पे 3 है, मतलब ये नंबर किसी का क्यूब होना चाहिए. किसका क्यूब है, 6 का. यहाँ 3 है तो ये नंबर किसी का क्यूब होना चाहिए, और होगा ही, देख लेना. ठीक है, मैंने लिखा 6 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2 by 3. क्यों, क्योंकि बाहर 2 by 3 पड़ा है, और होल रेज टू दी पावर में क्या है 1 by 2. अब ये 3 और ये 3 कट गया,
तो ये मेरा बन गया 6 रेज टू दी पावर 2 और बाहर क्या पड़ा है 1/2, ये 2 से 2 कट गया तो 6 रेज टू दी पावर 1, आंसर क्या आया 6। एक बार और बता रही हूँ, 216 था और यहाँ पे 2/3 था, तो मैंने इस 3 को देखा और फिर इस नंबर को देखा तो मुझे ये पता लगा कि ये 3 की पावर में होना चाहिए, यानी कि ये नंबर किसी का क्यूब होना चाहिए। तो हमने देखा 216 किसका क्यूब था, 6 का क्यूब था, लिख दिया 6 क्यूब। पहले से ही बाहर क्या पड़ा है 2/3 पड़ा है, तो 2/3 का 3 और 3 दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। उसके बाद उसके बाद हमने यहाँ मेरा मिल गया 6 स्क्वायर को फिर मैंने रेज टू दी पावर में क्या किया 1/2, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गए, 6 की पावर 1 और आंसर क्या आ गया 6। ठीक, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, वो भी बड़ा आसान है। इट इज प्योर कैलकुलेशन बेटे, कुछ भी नहीं है, छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन है, बस ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है। सो दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू दी पावर 1/3। अब 10 की पावर कुछ भी नहीं है, कोई पंगा नहीं है, इसको एज इट इज रखो, यहाँ है और यहाँ क्या है 3, तो 8 किसी का क्यूब होना चाहिए, किसका क्यूब है 2 का, कैंसिल हो गया। सो 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया 5, बिल्कुल सीधा है ना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, बड़े इजी क्वेश्चन हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी। इट इज 16 रेज टू दी पावर 3/4। अब जब आप 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे बच्चे, so 2, 8, 2, many of you can do it directly also, I know, excellent for them। बाकी लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको भी डायरेक्टली आ जाएगा। 1 2 3 4 टाइम्स, मुझे 4 ही चाहिए था, तो 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3/4 कैंसिल हो गया, 2 क्यूब और 2 क्यूब कितना होता है 8, आ गया आंसर। ठीक है, अब हम चले फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट 27 रेज टू दी पावर 1/3 इंटू 16 रेज टू दी पावर -1/4। 27 क्यूब होना चाहिए, किसका क्यूब है 3 का, सो 3 रेज टू दी पावर 3 इंटू 1/3 पहले से ही पड़ा है। अब 16 के प्राइम फैक्टर्स ऊपर निकाल के ही आए हैं, मुझे पता है 2 रेज टू दी पावर 4 होता है इंटू -1/4, पावर को बाद में पॉजिटिव बना लेंगे, ये कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये बन गया 3 रेज टू दी पावर 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर -1। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 इंटू 1/2, आंसर क्या आ गया हमारा 3/2। इजी ना। नाउ इज योर सिक्स्थ पार्ट, अगेन इजी वन, मुश्किल तो है ही नहीं कुछ भी। 1 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 3 रेज टू दी पावर 4 रेज टू दी पावर 1/2 होल रेज टू दी पावर -2। ऑलरेडी उन्होंने पावर करके दी है, कुछ करना ही नहीं है। 1/3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 1/2 इकट्ठा कर लेते हैं, इस -2 को बाहर रहने देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर 1 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 2 और उसके बाहर क्या पड़ा है -2, सो दैट इज 1/3 2 इंटू -2। 2 इंटू -2 कितना हो गया, 2 इंटू -2 हो गया -4। 2 इंटू -2 इज योर 4, तो व्हाट आई गेट 1/3 रेज टू दी पावर -4। पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यू नो इट वेल, वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल, सो वी विल टेक द रेसिप्रोकल। आई गेट 3 रेज टू दी पावर 4। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में 3 रेज टू दी पावर 4 किया भी था, हम दोबारा कर लेते हैं। हाँ 3 रेज टू दी पावर 5 था, 3 3 बोलो 9, 9 3 27, 27 3 81, so my answer comes out to be 81. Now the next sum, the seventh part of the question, that is 27। इजी लग रहा है ना, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, कुछ भी नहीं है। 27 रेज टू दी पावर -2/3
इंटू 81 रेज टू द पावर 5/4 होल अपॉन 1/3 रेज टू द पावर -3। ठीक, तो अब इसको लिखा। सो 27 रेज टू द पावर -2/3 को हम लिख रहे हैं, क्यूब होना चाहिए ना, तो मुझे पता है 3 क्यूब 27 होता है इंटू -2/3। 81 को क्या लिखेंगे, 3 रेज टू दी पावर 4 और इंटू लिखा 5/4 होल अपॉन, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो, अभी बाद में देखते हैं इसका क्या करना है, -3 है। ठीक, अभी इसको करते हैं, 3 और 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, सो ये हो गया 3 रेज टू दी पावर -2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5 अपॉन, इसको अब मैं पॉजिटिव कर रही हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर 3। देखो रेसिप्रोकल करते ही मैंने पावर में से नेगेटिव साइन हटा दिया। अब उसके बाद बीच में इंटू का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो 3 रेज टू दी पावर माइनस, पावर्स ऐड होंगी, 3 रेज टू दी पावर -2 + 5 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 3। So that is equal to 3 raised to the power 3 upon 3 raised to the power 3। कैंसिल करो, आंसर आ गया 1। ठीक है, अब करते हैं 8th पार्ट। एट्थ पार्ट है 64 रेज टू दी पावर 1/2 इंटू 64 रेज टू दी पावर 1/2 + 1। अब रेज टू दी पावर 1/2 मतलब ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, किसका स्क्वायर है, 8 का, सो 8 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 1/2 + 1, 2 and 2 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, सो दैट इज 8 इंटू 8 + 1, दैट इज 8 इंटू 9, आंसर इज इक्वल टू 72। क्वेश्चन नंबर 9th। Now the 9th part, 36 raised to the power -7/2. No, it is 7/2. -36 raised to the power 9/2 upon 36 raised to the power 5/2। यहाँ मैंने लिख दी है स्टेटमेंट, क्वेश्चन को सॉल्व हम ऊपर ही करेंगे। So I write 36, किसका स्क्वायर है, 6 का, 7/2 -6 स्क्वायर इंटू 9/2 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू 5/2। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो दैट इज 6 रेज टू दी पावर 7 माइनस 6 रेज टू दी पावर 9 अपॉन 6 रेज टू दी पावर 5। बेटे अब बच्चे इसको बहुत डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगी, जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। ठीक, देखो नीचे क्या पड़ा है, 6 रेज टू दी पावर 5। मैं इंडिविजुअली अगर मैं 6 रेज टू दी पावर 7 को लिखूँ 5 + 2 और 6 रेज टू दी पावर 9 को लिखूँ 5 + 4 अपॉन 6 रेज टू दी पावर 5, जानबूझ के किया क्योंकि मुझे ये नंबर बाहर चाहिए। इसको मैंने लिखा, अब इसको पावर्स ऐड हुई है ना, मतलब ये कभी मल्टीप्लाई थे, ये ऐसे थे, सिमिलरली ये भी ऐसे थे, अपॉन 6 रेज टू दी पावर 5। सो अब 6 रेज टू दी पावर 5 को कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया, 6 स्क्वायर माइनस 6 रेज टू दी पावर 4 अपॉन 6 रेज टू दी पावर 5, 6 रेज टू दी पावर 5, 6 रेज टू दी पावर 5 कैंसिल, सो ये हो गया 36 माइनस 1296 होता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया -1260। क्लियर, द आंसर इज -1260। एंड नाउ आफ्टर डूइंग द 10th part I'll finish with it and rest of the things we'll be doing in our next video. I hope ये समझ में आ गया। बाकी और तरीका क्या था, 6 रेज टू दी पावर 7 निकाल लेते, 6 रेज टू दी पावर 9 निकाल लेते, 6 रेज टू दी पावर 5 उनको करते रहते बैठ के, टाइम ज़्यादा लगता। एक और तरीका क्या था, ऐसे भी कर सकते थे, तो ये हो जाता, इनकी पावर्स को माइनस करते तो यहाँ 2 आ जाता और इनकी पावर्स को माइनस करते तो यहाँ 4 आ जाता।
फिर भी वही बात बन जानी थी। मतलब आपके अपने ऊपर है, आप जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद 10th और लास्ट हमारा आज का 4 इंटू 81 रेज टू दी पावर -1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 81 रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 81 रेज टू दी पावर 3/2। अब अपॉन में 2 है ना, इसका मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 81? 9 का। 4 इंटू 9 रेज टू दी पावर 2 इंटू -1/2 इंटू 9 रेज टू दी पावर 2 इंटू 1/2 प्लस 9 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2 इंटू 3/2। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। 2 से 2 कैंसिल कर दो सभी जगह। सो आई गेट 4 इंटू 9 रेज टू दी पावर -1 इंटू 9 प्लस 9 क्यूब। ठीक है जी, इसको क्या लिख लेंगे? दिस विल बी रिटन एज 4 इंटू 1/9 इंटू 9 plus 7 29, that is 4/9 इंटू 738। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए एंड आफ्टर सॉल्विंग ये आप कैंसिल कीजिए। ऑन कैंसिलिंग यू विल गेट 9 8s and 9 2s, you will multiply and you will get the answer is 328। So children, that is all for today। होमवर्क मैंने बीच में ही दिया है, आपको पता है कहाँ दिया है, दोबारा देख लेना बेशक। एंड यू हैव टू सेंड इट। टाइम आपको पता है 12 o'clock। गॉड ब्लेस यू।